جن گھڑیوں سے نمٹ رہا ہو، چاہے ایمانی تقاضوں کو اپنا رہا ہو یا اس کو ترک کر رہا ہو، یقینی طور پر اگر کچھ اس میں کمی آئے گی، اگر اس میں کچھ ہماری سستی اور کاہلی ہوگی جس کی وجہ سے تاریکی اور اندھیری ہوگی، ضلالت و گمراہی ہوگی، تو ایسے وقت میں اپنے آپ کو وہ دائی اور وہ ہادی جو رہنمائی وقت ہے ان کی رہنمائی کو قبول کرنی ہوگی، ان کی دعوت کو قبول کرنی ہوگی، آج اسی کے مطابق چلنا ہوگا، تبھی ہم کو کامیابی مل سکتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج کل زندگی کے لمحات جو ہم گزار رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جو کمیاں ہو رہی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اولی مجرم از خود میں اپنے آپ ہوں۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو رسول اور نبی بنا کر مبعوث فرمایا، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، وہ شخصیت کے آنے کے بعد اور جبکہ مغرب سے مشرق ہر چہار جانب کہہ لیا جائے اسلام کا نور پھیل گیا، ہدایت و رہنمائی مل گئی۔ اب اگر کمی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے تو وہ ہماری اور آپ کی کائلی اور سستی ہے، جس کی بنا پر ہم عمل کے قریب نہیں ہو رہے ہیں اور اچھے اعمال کو انجام نہیں دے رہے ہیں۔ میرا محترم بزرگوں، دوستو، ایک طرف تو یوں چلیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول تسلیم نہیں کرنا جس طریقے سے کفر و ضلالت ہے، اسی طریقے سے وہ شخصیت، وہ ذات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ہادی وہ مرشد بنے، دائی بنے، ہم نے اگر ان کے قول و فعل اور اعزاز و اکرام کو ٹھکرا دیا، اس کی توہین کی، تو اسی طریقے سے کفر و ضلالت کی کھائی میں جا کر گر پڑیں گے۔ میرے محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قائد و قاصد بن کر دنیا میں دینی نور، ہدایت ہم لوگوں تک پہنچانے کے لیے مبعوث ہوئے، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کارکردگی کی اور لوگوں پر محنت کی، اس کے لیے طرح طرح کی اذیتیں اٹھائی، اور وہ اذیتیں ایسی رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ اس دنیا کے اندر جو مجھے تکلیف دی گئی، انبیاء سابقین کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی۔ میرے محترم، اس کے بعد جب سلسلہ شروع ہوا تو چونکہ اس وقت میں مدرسے نہیں رہے، بنیادیں مدرسوں کی نہیں تھی، صرف مساجد تھی، چنانچہ علماء سابقین لکھتے ہیں کہ کانت المساجد فی عالم الاسلامی، اسلامی عالم کے اندر صرف اور صرف مساجد تھی، اور اس مساجد میں یخرج الصلحاء والمشائخ والقواد والعلماء
वहीं से सब पैदा हुआ करते थे। जितने लोग दीन के रहबर के नाम से तस्वुर किए जाते हैं, खा वो मसाइख हों, सुलह हों, या कायदो रहनुमा हों, या उलमाए किराम हों, ऐसे नहीं बल्कि वह रिजालुन मिनल क़ज़ा, काज़ी वक्त भी उन्हीं से निकले, वल फुतिया, और मुफ्तियान किराम भी उसी से निकले। और यहीं तक नहीं बस हुआ बल्कि फुक़हा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, लुग़वियीन, ये तमाम हज़रात उस वक्त में मसाजिद से निकले। एक तरफ हम मुआशरती निज़ाम के अंदर नज़र डालें, हमारा काम और हमारा उसूल क्या हो गया है, मस्जिद को सिर्फ और सिर्फ नमाज तक महदूद रखा है, और मस्जिद के इमाम को सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ाने तक महदूद रखा है। जबकि मसाजिद से ये सारे काम निकला करते थे। मदारिस तो बाद में बनाए गए, उसकी तामीर हुई। हमने क्यों ये तक़सीम किया, और ये हमारे अंदर क्यों ये ऐसा उसूल बना कि जो इनके बुनियाद पर हमने बांट करके और तक़सीम करके रख दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज हाल ये है कि सिर्फ और सिर्फ 5 वक्त की नमाज के लिए इमाम सिर्फ मुकर्रर होते हैं, जबकि मस्जिद की अंदरूनी तरक्की, मस्जिद के अंदर तालीम और तबलीग, मस्जिद के अंदर इरशाद और आखिरत के तमाम उमूर जो कामयाबी के राज हैं, वो सारे मसाजिद में तैयार हुआ करते थे, और सभी लोग वही अंजाम देते थे, और उनसे बड़े बड़े उलमाए किराम निकलते थे, और वो दीन की इरशाद और तनसीर करते थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये उस वक्त का हाल था। लेकिन आज जब वो लोग जो अपने आप को जिम्मेदारान कहलाते हैं मस्जिद और मदरसे के, सिर्फ मसाजिद को नमाज के लिए मौकूफ कर दिया, और सिर्फ नमाज ही को असल इबादत समझ लिया, और उसी के लिए मस्जिद का क़याम रखा, तो ये जान लीजिए कि यहाँ भी सिर्फ यही पर बस नहीं किया, बल्कि उसके बाद हम लोगों का ये काम हो गया कि मस्जिद के अंदर जो अंदरूनी उमूर है वो सबको अपने कब्जे में ले लिया, अपनी मुट्ठी में ले लिया। उलमा सिर्फ नमाज पढ़ाए और वो अपनी जगह जा बैठे। मेरे मोहतरम सामीन किराम, आप जहाँ मस्जिद के इतने रूहानी आमाल उमूर से पीछे रहे, वहीं पर आपने इमाम की तौक़ीर और ताज़ीम को छोड़ दी और उसके इकराम को छोड़ दिया। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबहत इमामत में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबहत क़ाइद में, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबहत दीनी उमूर को बताने में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबहत उलमा होने में, वारिसे अंबिया होने में, दीनदार होने में, तक़वा शिआर होने में, खौफ व खशियत की मिल्कियत हासिल करने में उस इमाम और उस उलमा को हासिल, जिससे आप और हम कोसों दूर हैं, लेकिन इनके बावजूद भी हम उनकी ताज़ीम नहीं कर पाते। उनके एजाज़ और उनकी असल जो उनके मनासिब हैं, उनके लिहाज से हम उनको नहीं तस्वुर कर पाते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंज़िलुन नास मनाज़िलहुम, कि लोगों को उनके मनासिब और मर्तबे के लिहाज से उतारो, जगह दो, मौका फराहम करो। लेकिन हमारा हाल ये हुआ कि जिस तरीके से हमने अपने आप को निकम्मा और नाकारा समझ लिया, उसी तरीके से अपने उलमा का और अपने इमामों का मकाम को बिल्कुल रोंद दिया
اور اس کو نکارا بنا دیا، سمجھا کہ جیسا میں ویسا ہی وہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، فضیلتوں کے حاصل کرنے کے لیے علماء کرام اور ائمہ کرام کو یہ ساری سرٹیفکیٹیں جو میں نے ابھی کہی ہے وہ کافی ہے۔ آپ چاہے سرٹیفکیٹ عنایت کریں یا نہیں کریں، چاہے آپ ان کو مانیں یا نہیں مانیں، چاہے آپ کو ان کی اہمیت کو روند دیں، چاہے ان کو بالکل پسپا کر دیں، چاہے زمین کے اندر دھسا دیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان کے مقام کو بالکل ہلا دے اور ان کے منصب کو گرا دے، ان کے عہدے کو اس سے دور کر دے۔ اگر آپ کے اندر بے غیرتی بھری ہوئی ہے، اگر آپ کے اندر بدتمیزی بھری ہوئی ہے، آپ اگر اس کے مقام کو نہیں سمجھتے ہیں، اس کا خسارہ اور نقصان بالیقینی طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو، ہم کو ہوگا، ان کو نہیں ہوگا۔ میں نے اسی تناسب سے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، بہت بڑے تابعین گزرے ہیں، تابعینوں میں ایک تابعی امام زہری رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اکابر اور استادوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں اپنے دادا جان سے کہ اگر کوئی آدمی کسی عالم وقت کی زیارت کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا اس نے میری زیارت کی۔ جس نے کسی عالم وقت سے مصافحہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ جو کسی نے کسی عالم وقت کے ساتھ بیٹھا، ان کی مجلس میں تشریف رکھا، گویا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مجلس میں تشریف رکھا بیٹھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص دنیا کے اندر کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں قیامت کے دن بیٹھنا کیا یہ کامیابی اور فلاح و بہبودی کی بات ہے یا نہیں؟ ہر انسان یہ سمجھتا اور جانتا ہے کہ جس کی مناسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رتی برابر بھی ہو گئی ہے تو اس کو کامیابی انشاءاللہ ملے گی اور ملے گی، 100% یقین ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے؟ جس طریقے سے میں نے اپنے آپ کو سوچ لیا اسی طریقے سے اس کو سوچ لیا اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ رویہ کیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ عالم جا رہا ہے، یہ مجھے سلام کرے گا، یہ مجھ سے خبر خیریت پوچھے گا، یہ مجھے ٹوکے گا، یہ مجھے کچھ باتیں پوچھے گا، اور خود آگے بڑھ کر ان کے ساتھ نہ سلام کلام اور نہ کوئی خیر و خیری خوبی لینے کی بات ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، سوچتا ہے کہ یہ عالم جا رہے ہیں، یہ رکیں گے، مجھ سے مصافحہ کریں گے، سوچتے ہیں کہ میں چند آدمی یہاں بیٹھا ہوں، یہ جانے والا جب عالم ہے تو وہ آئے گا میری مجلس میں بیٹھے گا، لیکن ان کی مجلس، ان کا حجرہ اور ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ آج خود سوچتے ہیں کہ وہ اپنا وقت ہمارے پاس صرف کرے اور اپنا وقت میرے پاس گزارے، جبکہ ان کے پاس بہت سارے دینی امور ہوتے ہیں حل کرنے کے لیے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے، آپ نے اپنی زندگی کو دنیا کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تھوڑی سی دنیاوی کی مٹھاس نہیں آ گئی،
सब्जी वो शादावी नहीं आ गई कि फरेफ्ता हो गए और दिन रात के 24 घंटे उन पर कुर्बान कर दिए, और उनमें से रज़ा बराबर कुछ वक्त बचा करके अपना वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के पास गुजारने की तौफीक नहीं हुई और नहीं सोचा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, उलमा का मकाम बहुत सारी अहादीस में, मैं एक प्रोग्राम में इससे पहले गया था पूर्णिया के अंदर, तकरीबन 85 अहादीस ऐसी हैं जिनमें उलमाए किराम के मकाम का तज़किरा है। उलमाए किराम हमारी दीन हनीफ का बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ी पूंजी है। अगर इस पूंजी को कोई खत्म कर रहा है तो ये हमारे दीन का पासदार और लिहाज करने वाला, जिनको हम और आप ईमान वाले तस्वुर करते हैं और कहते हैं ये मोमिन भाई है और ईमान वाले हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस ज़ाब्ता हयात को रोंदा है, बहुत खलक होता है, बहुत अफसोस अब पर मुल्तगी आती है और सोचना पड़ता है कि वाकई हमारा ये ऐसा हाल कैसे हो गया। जब हमको अपने मजहब से बोध होगा, दूरी होगी, जब अपने आप को दुनिया ही को कुल पूंजी और बेसात समझ लेंगे तो हमारा हाल ये होगा ही। आप भी बने अंगेख्ता होइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वलम युबज्जिल आलिमना फलैसा मिन्ना, और जिस शख्स ने हमारे आलिम की इज्जत नहीं की वो हम में से नहीं। ऐसे नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन वक्कर आलिमन फक़द वक्करना, जिस आदमी ने किसी आलिम की ताज़ीम की गोया उसने मेरी ताज़ीम की। वस्तक़बल आलिमन फ़क़द वस्तक़बलना, जिस आदमी ने किसी आलिम का इस्तक़बाल किया गोया कि उसने मेरा इस्तक़बाल किया। उलमाए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं और क्या हम लोगों के अंदर ये खैर व खूबी पैदा हो रही है और हमारे अंदर ये दीन की बातें जो असल बात है, जो वक़ार है, जो शनाख्त है, जो पहचान है, वो पहचान और वो सिफात पैदा हो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ किस किस अंदाज में, किस किस नौइयत से और किस किस तरीके से उलमाए किराम की तौक़ीर फरमा रहे हैं, उलमाए किराम की निस्बत को अपनी निस्बत से जोड़ रहे हैं, उलमाए किराम के मामलात को अपने मामलात से जोड़ रहे हैं, उलमाए किराम के उमूर को अपने उमूर से जोड़ रहे हैं, उलमाए किराम के ख़यालात को अपने ख़यालात से जोड़ रहे हैं, उलमाए किराम के तौर तरीक़ा को अपने तौर तरीक़ा से जोड़ रहे हैं, उलमाए किराम के ज़ाब्ते ज़िंदगी को अपने ज़ाब्ते ज़िंदगी से जोड़ रहे हैं। यहीं तक बस नहीं किया, बल्कि अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह, फतावा आलमगीरी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने तो उलमाए किराम और अइम्माए मसाजिद की इताअत को वाजिब करार दिया है। लेकिन मैं एक फतवा दारुल उलूम देवबंद का आपको बताना चाहता हूँ कि उनके अंदर का एक फतवा है और मौलाना अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने भी इसकी तस्दीक की है कि इताअत उलमा व अइम्मा फर्ज है। क्या हमारा और आपका नजरिया सिर्फ नमाज के फर्ज होने का है, सिर्फ ज़कात के फर्ज होने का है, सिर्फ हज के फर्ज होने का है, सिर्फ रोजा के फर्ज होने का है? इस फर्जियत को कौन जानेगा? इस फर्जियत को कौन समझेगा? इस फर्जियत के मुताबिक कौन चलेगा? तो बात असल ये है कि जब हम और आपने अव्वली फर्जियत वगैरह को ठुकरा दिया और रोंद दिया, उन फर्जियतों को बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं की और पूरे उतरने की कोशिश नहीं की, तो फिर यहाँ पर ये तो ऐसी बातें हैं कि बिल्कुल अंदरूनी सतह में जाने के बाद, तह के अंदर जाने के बाद फिर मालूम होगा कि ये चीज़ भी हमारे ऊपर फर्ज है।
मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं चंद बातें बताकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। और वो बातें ये हैं कि आज उलमाए किराम की तहकीर इस अंदाज को पहुँच गई है, तौहीन इस अंदाज में पहुँच गई है कि हर घर घर, हर मजलिस में, हर बैठक में और हर जगह उसकी तौहीन की बात होती है और उसकी इहानत की बात होती है। उसकी तौहीन और इहानत को लोग इस तरह हल्केपन में लेते हैं और अपने महबूब अल्फाज में उनको शुमार करते हैं और लोगों के पास हंसी और मस्करे करते हैं। चुनांचे अल्लामा इब्न नुजैम रहमतुल्लाह अलैह जो अल-अशबाह व नज़ाइर के मुसन्निफ हैं, वो लिखते हैं इस्तिहज़ाउ बिल इल्मी वल उलमा कुफ्रुन, कि इल्म और उलमा का इस्तिहज़ा करना, तौहीन करना कुफ्र है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे वो भाई जो सिर्फ उलमा को अपनी ज़बान पर रखते हैं और उनके तौहीन आमेज़ अल्फाज का इर्तिकाब करते हैं, वो लोग इस बात को समझें कि उनका इस्तेहज़ा करना, उनके इल्म का इस्तेहज़ा करना, उनकी ज़ात का इस्तेहज़ा करना। फतावा दारुल उलूम में ये बात लिखी हुई है कि अगर वो उमूर दीन में अगर इस्तेहज़ा है तो कुल्लियतन वो कुफ्र है, और अगर उमूर दुनिया में है तो वो फासी को फाजिर है। क्या अपने आप को फासी को फाजिर बनते? गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करने वाला फासी को फाजिर होता है क्या? दुनियावी मामले के अंदर उलमा को कायद नहीं समझना, उनकी तौहीन करना, ये फिस्क व फुजूर में शामिल होता है। चुनांचे मैं आखिरी पैगाम आपको देता हूँ, और वो पैगाम ये है कि हम और आप अपने अंदर जो गयूर मुसलमान समझे जाते हैं उस गैरत को उभारिए, और अपने आप को जो स्टेज हमको मिला है ईमान का स्टेज, उसी में स्टेज पर फायज होइए और अपने आप को वैसा बनाइए और वैसा समझिए। इसलिए अगर नहीं समझेंगे तो बहुत सारे उलमाए किराम जो उलमाए साबिकीन हैं, ऐसे लोगों के मुतालिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस नकल की हैं। बाजों ने से 4 किस्म का अजाब नकल किया है, और हसन रहमतुल्लाह अलैह ने, उन्होंने तो जो सिर्फ ये लिखा कि उनकी हलाकत काफ़ी है, और उसके बाद फला तकुनुल खामिसा एक हदीस है कि 5वां मत बनो, उसमें भी ये हलाकत की बात है, पतो लग फिर हलाक हो जाओगे। चुनांचे मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस बात को याद रखिए कि जिन लोगों का मिजाज ऐसा बना हुआ है, या जो लोग उलमा और आइम्मा के पीछे पड़े रहते हैं, वो लोग अपने आप को जो उनसे माफ़ी मांगे, अपने ईमान की तजदीद करें और अपने आप को ताइब और